Hello everyone. Once again, I will welcome you all in the second lecture of controller. In the previous lecture, we have discussed the proportional controller. So today I am going to discuss about the integral controller. Okay. So let us take a feedback control system. Okay. So in a feedback control system, we have a reference input RS, then we have a controller, okay, integral controller, and the gain of this integral controller is Ki by S, okay, and then we have a plant, okay. And suppose we are taking the second order control system. So the gain of the plant of second order control system is omega n square divided by s plus 2 zeta omega n. Okay, this is the plant gain. Okay, and if suppose I am taking the unity feedback control system. Okay, so the gain of unity feedback is 0, and this is your controlled input, okay, or you can say feedback input, controlled input, okay. So this is basically error detector, and the difference of reference input and control input is equal to the error, okay. So we are using the integral controller. So integral controller is which whose output is proportional to the integral of the error signal, okay. So we can write it output of integral controller is proportional to the integral of the error signal, okay, error signal. So we can write let us suppose output of the controller is called the actuating signal, okay. So in frequency domain it is ES. So if I'm writing in time domain, then the actuating signal or the output of the controller, that is EAT, is proportional to integral of the error signal, okay. So EDT, okay. So if I remove the proportionality, then proportionality means a constant will be added, that is called the integral constant, okay. That is integration of ET and DT. Now if I am taking the Laplace both sides, then it will transform in frequency domain, then EAS is equal to Ki divided by S into ES, okay. So we can write EAS divided by ES, okay. So this is the output of the integral controller, and this is input to the integral controller, okay. So error is the input to the integral controller. So output divided by input, that is what, Ki divided by S, and this is the gain of the controller, or you can say the controller transfer function, okay, or you can say the gain of the controller. So this is basically what gain of the integral controller, that is GCS, okay. And the gain is Ki by S, where Ki is the integral constant. Now what about the open loop gain of this feedback control system?
without controller. Okay, so I'm going to write the open loop gain. Okay, or you write it gain without controller. Okay, gain without controller. Okay, so what will be the gain without controller? This will be omega n square divided by s plus 2 zeta omega n. Okay, so this gain having type 1 system. Okay, why it is type 1? Because the number of poles at origin is equal to 1. Okay, one pole lying at origin, so the type of the system is 1 and order is 2. Okay, so I can also find the closed loop transfer function of this integral controller without closed loop transfer function without controller. Okay, so this will be the transfer function will be what I can calculate, that is omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Okay, since the pole of this closed loop system R lies at s is equal to minus 2 zeta omega n plus minus j omega d, or you can write it omega n under root 1 minus zeta square. So if you plot these poles, you found that the poles are lying on the left side of the plane, so the system is stable. Okay, so this system, the control system is stable. Okay, stable. Now if suppose I am going to incorporate an integral controller in the forward path of the control system, okay, the purpose of this controller is basically to minimize this error so that we get the desired output. Okay, so this is basically the definition of controller. Okay, now if suppose I am incorporating an integral controller here, then what about the open loop gain? So total gain become GCS into GS. Okay, GS is the gain of the plant. Okay, so gain of the controller, gain of the control system. Okay, control system with controller, with I controller. Okay, so what will be the gain? So gain, total gain become GCS into GS. GCS is the gain of integral controller and GCS is the gain of the plant. So this will become what? Ki divided by S multiplied by omega n square divided by S plus 2 zeta omega n. Okay, so this is the open loop gain. If I want the overall transfer function of with controller, so with controller, okay, with controller the transfer function will be what? It will be GTS divided by 1 plus GTS, because we are using the unity feedback control system. So putting the value GT here, we will get the transfer function, that is Ki omega n square divided by SQ plus 2 zeta omega n S square plus Ki omega n square. Okay, so what about the type and order of the system with integral controller? So here you can see, since the two roots are lying on the origin, okay, so type of the system is 2 and order of the system is 3. Okay, so what you can conclude from here, since
integral controller increase type and order of the system by 1, so you can say that the steady state error is reduced, because if type of the system is increased, then steady state error will reduce. Okay, will reduce. Okay, so since type of the system is increasing, so steady state error will reduce. Now see the open loop closed loop transfer function here. So what you can say about the stability? Okay, if we talk about the stability, so we can see, since denominator having missing term, okay, s term is not here, so हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है ना, विद कंट्रोलर, ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं बाय द रूट्स ऑफ पोल्स हमारे लेफ्ट साइड लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे, और हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में कोई भी मिसिंग टर्म है तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। एक और तरीका है इसके लिए, आप राउथ हर्विस क्राइटेरिया, राउथ हर्विस यहाँ पे लगा के आप इस सिस्टम की फिर स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यू कैन चेक लाइक दिस, सो S2 S3 S2 S1 S0, ओके। सो यहाँ पे आपका 1 आएगा, और सिंस S का टर्म मिसिंग है हमारा तो ये 0 हो जाएगा। S2 का कोफिशिएंट है 2 जीटा ओमेगा n, सो इट इज 2 जीटा ओमेगा n, एंड ये वाला टर्म आपका KI ओमेगा n स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका आएगा KI ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जीटा ओमेगा n, ठीक है ना, और ये वाला टर्म आपका 0 आएगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये वाला टर्म यहाँ पे आपका आ जाएगा KI ओमेगा n स्क्वायर। तो अगर आप राउथ टेबुलेशन के फर्स्ट कॉलम को गौर से देखें तो देयर आर 2 साइन चेंजेस, ओके। ये टर्म आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस एक साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस दूसरा साइन चेंज हुआ, तो देयर आर 2 साइन चेंजेस। दिस मीन्स कि इस सिस्टम के दो पोल्स आपके राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, और जब आपके सिस्टम के पोल्स राइट हैंड साइड पे लाई करते हैं, 2 पोल्स are lying on RHS plane, this means the system is unstable. So the system is unstable, okay. So what we can conclude from the integral controller, I am going to write in the next slide. So few points I can conclude from the integral controller, okay. So number 1, we can write I controller or integral controller increases the type and order of the control system by 1, okay. तो अगर इंटीग्रल कंट्रोलर यूज होने से क्या हो रहा है, हमारा टाइप और ऑर्डर सिस्टम का 1 से इंक्रीज कर जा रहा है। अगर पहले हमारा टाइप 1 था तो टाइप 2 हो जा रहा है सिस्टम। सो अगर टाइप ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगा, दिस मीन्स स्टेडी स्टेट एरर will reduce. So since type of the system is increasing, so we can conclude that the steady state error will decrease, okay.
स्टेडी स्टेट एरर विल डिक्रीज। और स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। ओके, यू कैन राइट सिस्टम रेस्पॉन्स आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, बट द ड्रॉबैक क्या है इस इंटीग्रल कंट्रोलर का, कि जब आप इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर रहे हो तो सिस्टम की स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज हो रही है। अभी आपने देखा था सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विदाउट कंट्रोलर जो आपका था उस वो स्टेबल था। जब आपने उसमें इंटीग्रल कंट्रोलर एलोन यूज किया है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है घट गई है, वो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। सो आप अभी हमने सेकेंड ऑर्डर प्लांट लिया था, आप फर्स्ट ऑर्डर प्लांट लेके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। वहां पे भी आप देखेंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस विद इंटीग्रल कंट्रोलर। ओके, इसीलिए इंटीग्रल कंट्रोलर जो है अकेले हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो यू कैन राइट आई controllers alone are not practically used. Okay, practically used. Okay, so दिस इज बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम, कि अगर हम इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रल कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इंटीग्रल कंट्रोलर अकेले यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हम लोग अगर हम पीआई कंट्रोलर यूज करें तो इस स्टेबिलिटी को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पीआई कंट्रोलर। ओके, सो हम लोग स्टडी करेंगे पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर मतलब प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, इसमें दोनों ही हमारा होगा, प्रोपोर्शनल भी होगा और कंट्रोल और इंटीग्रल भी यूज करेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस टेक अ कंट्रोल सिस्टम अगेन। सो वी हैव an input, then we are taking a proportional plus integral controller. So for proportional we have a gain of proportional controller kp, and the gain of integral controller is ki by s. Okay, so this is basically what your PI controller, this one is your, the whole combination is called PI controller. Okay, this is basically PI controller. And then we have a plant, okay, and output, and we are using unity feedback. Okay, so I am taking unity feedback here. So the gain of the unity feedback is 1. This is plant. I am taking the second order, so the standard equation, you can say standard gain of the plant is omega n square divided by s plus 2 zeta omega n. Okay, and this is the output. Okay, so this is basically error detector. Okay, and this is error signal. Okay, that is ES. Okay, and the output of this PI controller is EAS, which is actuating signal, and this is applied to the input of the plant. Okay, so in case of PI controller, proportional plus integral controller, the output of the PI controller, you can write here, output of PI controller is proportional to error signal and
integral of the error signal and integral of the error signal. Okay, so we can write here EAT basically output of the PI controller. Okay, this is PI controller. Okay, so output is also called the actuating signal. Okay, so output of the PI controller is proportional to, okay, you can write like this, is equal, output of the PI controller is proportional to error signal and integral of the error signal. So you can write EAT is equal to KP into ET plus KI इंटीग्रल ऑफ ET DT. ओके, तो जो एक्चुएटिंग सिग्नल है वो एरर के प्रोपोर्शनल है और एरर सिग्नल के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम दोनों साइड लाप्लास ले लेते हैं देन इट विल बिकम EAS KP, ET आपका हो जाएगा ES प्लस KI divided by S ES. Okay, so EAS divided by ES. Okay, so what is the transfer function or gain of the PI controller? That is what? KP plus KI divided by S. Okay, this is the gain of the PI controller. Okay, so from here for the convenient, let us take KP is equal to 1. Okay, so I am taking KP is equal to 1. So what I can write? 1 plus KI divided by S, or we can write it S plus KI divided by S. Okay, so this is actually the gain of the PI controller. Okay, now the controller gain with PI controller. Okay, अगर हम नॉर्मली देखें तो जो हमारा गेन था, ओके, विदाउट कंट्रोलर जो हमारा गेन था वो तो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन था. ओके, सो यहाँ से तो हमें पता है टाइप हमारे सिस्टम का क्या है, 1 है, और ऑर्डर हमारा क्या है, 2 है. सो ट्रांसफर फंक्शन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे बिना कंट्रोलर के, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और ये सिस्टम हमारा स्टेबल भी था. ओके, बिकॉज रूट्स इसके लेफ्ट साइड लाई कर रहे हैं. लेकिन जब हमने कंट्रोलर ऐड किया, पीआई कंट्रोलर ऐड किया, तो हमारा जो गेन है सिस्टम का वो क्या होगा, लेट्स सी द गेन. ओके, सो गेन विद पीआई कंट्रोलर. ओके, तो गेन क्या हो जाएगा, जो हमारा है GTS, ये टोटल गेन है, तो GCS गेन ऑफ द पीआई कंट्रोलर इनटू गेन ऑफ द प्लांट GS. तो यहाँ पे ये आपका गेन आ रहा था S प्लस KI डिवाइड बाई S. ओके, दिस इज द गेन ऑफ PI controller, and GS is what, omega n square divided by S plus 2 zeta omega n S. Okay, so what you can conclude, यहाँ पे आप देखिए अब आपका जो टाइप है सिस्टम का, ओके, टाइप ऑफ द सिस्टम, अब टाइप आपका सिस्टम का 2 हो गया है, और ऑर्डर आपका क्या हो गया है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम 3 हो गया है. ओके, तो बेसिकली अगर आप देखें कि यहाँ पे आपका टाइप सिस्टम का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, टाइप और ऑर्डर आपका 1 से इंक्रीज कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि स्टडी स्टेट एरर तो आपका रिड्यूस हो रहा है. सो यू कैन राइट रिड्यूसेस द स्टडी स्टेट एरर. ओके, अगर स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो
स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव हो रहा है. सो दस improves the steady state response. ओके, स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस हो रहा है. अगर आपको इसको चेक करना है तो हम इस स्टडी स्टेट एरर इसका चेक कर सकते हैं. बिकॉज आई नो ES जो हमारा होता है स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, ESS दैट इज इक्वल टू लिमिट ओके S टेंडिंग टू 0 S इंटू ES. ओके, सो ES हमको फाइंड करना होगा. ES क्या होगा, एरर सिग्नल. सो एरर सिग्नल विल बी व्हाट, दिस इज RS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS. ओके, GSHS. तो चूँकि हमारा टोटल गेन हमारा GT है, ठीक है, तो GTS. ओके, और यूनिटी फीडबैक यूज कर रहे हैं तो 1. ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यू विल गेट योर स्टडी स्टेट एरर फॉर रैम्प. अब पहले रैम्प इनपुट के लिए अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो फॉर रैम्प इनपुट के लिए RS क्या होगा आपका 1/s² होगा. सो अगर आप RS 1/s रखेंगे और GT जो हमारा ये हमने निकाला है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और आप इसका लिमिट फिर यहाँ पे S ES यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, ES का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और तब अगर आप स्टडी स्टेट एरर निकालेंगे देन यू विल गेट फॉर रैम्प इनपुट स्टडी स्टेट एरर इज 0 एंड फॉर पैराबोला इनपुट पैराबोला मीन्स RS is equal to 1/SQ. Okay, your steady state error will be your 2 zeta upon KI omega n. ठीक है, it is very simple to calculate the steady state error for parabola input because ES हमारे पास है RS upon 1 plus GTS और GTS हमने already find कर रखा है यहाँ से. So you can find the steady state error and you will get steady state error is 2 zeta upon KI omega n. तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर KI का वैल्यू चूज करेंगे सो यू कैन रिड्यूस द स्टडी स्टेट एरर और फॉर रैम्प इनपुट स्टडी स्टेट एरर इज ऑल्सो 0. यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि अगर टाइप ऑफ द सिस्टम आपका इंक्रीज कर रहा है, टाइप ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सो आप कह सकते हैं कि आपका स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस हो रहा है. और अगर स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस हो रहा है तो आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें कि अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें. ओके, ट्रांसफर फंक्शन विद PI कंट्रोलर. सो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा एक्चुअली GTS डिवाइड बाई 1 प्लस GTS. ओके, एंड GTS हमारा क्या था S प्लस KI ओके ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई S S इंटू S स्क्वायर हो गया अब S प्लस 2 जीटा ओमेगा n. ठीक है, ये आप क्या हो गया GT 1 प्लस सेम आपका यहाँ पे आ जाएगा S प्लस KI ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट S स्क्वायर S प्लस 2 जीटा ओमेगा n. ओके, now if you solve this you will get the transfer function will be what S plus KI omega n square divided by S cube plus 2 zeta omega n s square plus omega n square s plus KI omega n square. ओके, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा. अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर देख के या ट्रांसफर फंक्शन देख के आप इसकी स्टेबिलिटी नहीं बता सकते वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. तो इसके लिए आपको अगर स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है, अब अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्टेबिलिटी चेक करने के लिए राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगा सकते हैं. तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा. इसको अगर हम 0 पुट करेंगे S क्यूब प्लस 2 जीटा ओमेगा n s स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर s प्लस KI ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया. अगर मुझे इस चेक करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है या कब स्टेबल है, व्हाट आर द कंडीशंस, तो उसके लिए हमें राउथ हर्विट्ज पर जाना होगा. तो राउथ हर्विट्ज के लिए S2 क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है
S1 S0, तो फर्स्ट प्लेस 1 है तो ये 1 हो गया। ओके, ये आपका ओमेगा एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 जीटा ओमेगा एन हो जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा के आई ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये वाला प्लेस अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस के आई ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसमें मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन माइनस के आई। ओके, ये वाला टर्म, और यहाँ पे 0 होगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा दैट विल बी के आई ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, सो फॉर स्टेबिलिटी कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो साइन चेंज नहीं होने के लिए क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है, आप इसको देखिए गौर से, अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो राउथ हर्विट्ज के फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है, और अगर कोई भी साइन चेंज नहीं है इसका मतलब कोई भी रूट्स हमारा राइट हैंड साइड पे नहीं है, कोई भी पोल हमारा राइट हैंड साइड में नहीं है, तो सिस्टम हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 जीटा ओमेगा एन माइनस के आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस राउथ theory 2 जीटा ओमेगा एन माइनस के आई विल बी ग्रेटर देन 0। और आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि के आई इज लेस देन 2 जीटा ओमेगा एन। अगर ऐसा है तो सिस्टम आपका क्या होगा, सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर 2 जीटा ओमेगा एन माइनस के आई 0 हो गया, तो अगर ये टर्म 0 हो गया तो 0 इंटू 0 ये 0 हो गया, तो आपका जो सिस्टम होगा वो हो जाएगा आपका मार्जिनली स्टेबल। ओके, सो फॉर के आई इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन योर सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल। सिमिलरली अगर ये 2 जीटा ओमेगा एन माइनस के आई लेस देन 0 होगा तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। सो फॉर के आई ग्रेटर देन 2 जीटा ओमेगा एन सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आई कैन कंक्लूड कि विद पीआई कंट्रोलर हम स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते, बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ द के आई वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑल्सो। That is the drawback or disadvantage in integral controller. Okay, so अगर हम यहाँ से देखें, अगर मैं बात करूँ तो जीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज के आई डिवाइड बाई 2 ओमेगा एन। अगर मैं यहाँ से इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा इसका मतलब है आपका जीटा भी बढ़ेगा। ओके, जीटा भी आपका बढ़ेगा। तो अगर जीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, सिंस अगर के आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका जीटा भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो अगर जीटा हमारा ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, e की पावर माइनस जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, सो अगर जीटा इंक्रीज करेगा तो मैक्सिमम ओवरशूट आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। सो अगर सिंस आपका जीटा इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम ओवरशूट डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर राइज टाइम की बात करूं, ठीक है ना, राइज टाइम इज इक्वल टू पाई माइनस 5 डिवाइड बाई ओमेगा डी। ओके, ओमेगा डी। सो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारा ओमेगा डी डिक्रीज करेगा, ओके, क्योंकि हमारा जीटा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ओमेगा डी डिक्रीज करेगा तो राइज टाइम आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर राइज टाइम इंक्रीज करेगा सो हम लोगों को मालूम है कि राइज टाइम इनटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, दैट इज कांस्टेंट। सो अगर आपका राइज टाइम इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि आपका बैंडविड्थ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो बैंडविड्थ आपका डिक्रीज कर रहा है। और भी कई सारा कंक्लूजन आप कर सकते हैं। सिंस आपका जीटा इंक्रीज कर रहा है तो आपका एक होता है रेजोनेंस पीक। ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं आप, इम्प्रूविंग गेन मार्जिन
gain margin, phase margin, and resonance peak. Resonance peak आपका होता है MR. सिंस जीटा इंक्रीजिंग, सो आपका रेजोनेंट पीक भी डिक्रीज करेगा. ठीक है. और एक लास्ट पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा था जो हमारा कंट्रोलर गेन आ रहा था, दैट विल बी व्हाट, दैट इज एस प्लस के आई डिवाइड बाई एस. ठीक है. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं इसका बॉर्डर प्लॉट बनाऊं, ठीक है, बॉर्डर प्लॉट मतलब मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मैग्नीट्यूड डीवी में, ठीक है ना, एंड फ्रीक्वेंसी आपका, तो देख सकते हैं इनिशियल आपका टाइप ऑफ द सिस्टम आपका क्या है, 1 है. ठीक है. कंट्रोलर की बात करूं मैं, अगर के कंट्रोलर का टाइप 1 है, तो टाइप 1 है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो है इनिशियल स्लोप है वो कितना होगा, -20 dB पर डेकेड. तो इनिशियल स्लोप इज -20 dB पर डेकेड, 20 dB पर डेकेड. ओके. और फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी पड़ रही है एस इज इक्वल टू के आई पर, और जो कि आपका 0 पर है. ठीक है. एस इज इक्वल टू माइनस के आई. तो आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पड़ रही है के आई पे. ठीक है. जो कि आपकी 0 पर पड़ रहा है. तो जब 0 पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आती है तो स्लोप आपका +20 dB पर डेकेड से चेंज हो जाता है. तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना. सो ये आपका मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी प्लॉट है. यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी कम है तो मैग्नीट्यूड हाई है, और जब हमारा फ्रिक्वेंसी हाई है तो मैग्नीट्यूड कम है. इसका मतलब ये है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज को रिड्यूस कर रहा है. ठीक है ना. और आप इसको लिख सकते हैं filter out the high frequency noise. ओके. सो नॉइज लेवल आपका रिड्यूस हो रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक ए लो पास फिल्टर. ओके. लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को तो पास कर रहा है, बट हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अटेन्यूएट कर रहा है. तो जो हमारा कंट्रोलर है, पीआई कंट्रोलर, वो एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइजेस या हाई फ्रिक्वेंसी पर जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको जो है रिड्यूस कर रहा है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.